Fine. So this is where we were linking it. So now when specifically we are speaking about the perspective of sociology, so it's a very simple thing. Seeing the general in a particular way, like things are generally occurring and moving around us. So many people living in our neighbors, so many people we find on the road traveling to one place to another. So many people are there who are going for shopping, who are going grocery. At times, specific is what that once we stand across the road anywhere, so we see so many people who are traveling in a car and they are moving from one like the movement of the traffic is to and fro. So but the general is that yes, the traffic is going on from one side to another, coming back and forth, but how it will be specific or particular when we will get to know that who is going where. If a car is well decorated in terms of with flowers and all, so we will exactly get to know there is a wedding. But again, if we go into depth and we find तो हमें ये नहीं पता किसकी शादी है और कौन कहाँ पे जा रहा है. Is this the car of the bridegroom, or the bridal setup is going to is the person going to take that car to that person? But एक concept बनता है. Particular कैसे हो जाता है when there is a siren of a fire brigade or any siren which is played by the ambulances. लेकिन एम्बुलेंस में भी हमें ये स्पेसिफिकली नहीं पता कि वो जो स्पेसिफिक एम्बुलेंस में पेशेंट किस चीज का जा रहा है. सो गेटिंग माई पॉइंट. जिस तरह जनरल आप देख रहे होते हो कि ट्रैफिक मूव कर रही है, अच्छा ठीक है, बहुत रश है, क्यों क्राउडेड है ये नहीं पता. इसी तरह से अगर हमें एक अलार्मिंग साउंड सुनाई देता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया था, there is a huge sound, loud sound. We don't know that whether it's the blast of a tire which was inflated badly और वो burst हुआ है या it was a bomb blast. Unless and until news give us an evidence कि ये तो ये हुआ है उस जगह के ऊपर, अगर evidence नहीं मिलती तो that's a perception and we keep. Sociology यहाँ stop नहीं होती. It takes you with the evidence, relating it with the logic which is based on scientific discoveries and understanding, and then correlates and the things come out. Got it? तो ये सारी वो चीज है जिसकी हम बात करें एंड कंपैरिजंस की. अच्छा, ये चीज क्लियर हुई आपको? गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अब चलते हैं इसके बाद पॉइंट पे. ओके. There is general impact of society on the actions. That's again very natural thing. Thought and feelings of particular people. For example, seeing the world sociologically makes us aware of the importance of gender. Society attaches different meanings to gender, giving women and men different kind of work and family responsibility. अब ये वो डिफरेंस है जिसकी मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया में इंसानों को जो बनाया, उनके दर्जात तकसीम कैसे किए. बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, difference is only that a person is has got the responsibility of a father, mother, kids, and then the same role keeps going on till the last human being will be in existence on this in this. फिर स्पेसिफिकेशन कैसे आ गई जेंडर्स की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे आई? डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बाइफर्केशन. डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो इट मींस दैट यू आर डिफरेंशिएटिंग दी both the genders, like specifying one is better than another, तो वो discrimination हो जाती है. But while we speak of the genders overall differences, तो वो difference क्या है कि जाहिर है एक accepted law बना life का, वो ये था कि women are a bit different from appearance wise, women are different from men, voices are different, then their अब तो physical तो खैर strength तो अब almost कहीं कहीं देखो तो wrestlers भी हैं ladies, आप challenge नहीं कर सकते. But वही बात है general to specific or particular meaning. Giving women and men different kind of, अब वही बात है, responsibilities differ, but as of the society of today, men and women are equally competing each other. आपको पता ही है अभी जैसे विमेंस डे 8 मार्च को जो हम करते हैं, तो इस दफा भी आपने भी सेलिब्रेट किया होगा इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. तो आपको पता है कि बायस, इक्विटी और इन सब पे ही बात हो रही है ना. व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज दैट women can compete a man in terms of the challenges which both are accepting. जैसे कई दफा पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स होती हैं लेडीज, so they are a man and a lady at the same time. लेकिन एक जनरली स्पेसिफिकेशंस डिफर करती हैं. पहले एक लेडी है तो लेडी का रोल क्या है? शी इज अ डॉटर, वाइफ, शी इज अ ब्रेड अर्नर, और वो फिर आगे चलता है इसी तरह से. और देखें तो इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ अ वास्ट लेवल ऑफ रियलिटी. देयर इज इन्फिनिटली complex presence behind the way we think about our humanly constructed world. We have the interconnectedness.
सारे हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं. दैट्स रियलिटी ऑफ लाइफ. सोशल एंड कल्चरल अक्रॉस द वर्ल्ड. सोसाइटी और कल्चर से हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. अब आप देखें, वेयर आई एम एट प्रेजेंट, where you are at present, we are interconnected through a medium which is the electronic media. Likewise, we are sharing thoughts. अब जैसे मैं अगर आपको अपनी फैमिली से बात सुनाती हूँ, आप अपना बता देते हो. जैसे if I am relating that I am not well today, then in the meanwhile I related to you indirectly that let's take a break, let's go and offer prayers. So that is relating to my lifestyle. I related few realities. I'm considering more that education is important. So I'm differentiating myself from another lady in the same role by our differences. And why we both are similar? Because there are common things in me and you both. और ये इफेक्ट भी है. आप और मैं, हमारी नेचर्स मैच कर रही हैं कहीं ना कहीं. आप नोट करते रहो. लाइक आपके साथ जो मेरी बात होती है, टॉक होती है, तो वी फील कंफर्टेबल. क्यों? क्योंकि देखा जाए तो एक टीचर का रोल इज वेरी डिफरेंट, डिस्टेंट है. बट वो डिस्टेंस है ही नहीं हम में. You feel relaxed, you can anytime ask, you can anytime like a friendly note. ये वाले वो डिफरेंसेस हैं, ये वाले वो इम्पैक्ट हैं जो सोसाइटी के थ्रू एक्शंस आ रहे होते हैं somehow, जो हम यहाँ पे देख रहे थे. फिर थॉट है, फिर फीलिंग्स हैं पर्टिकुलर लोगों की दूसरों के लिए. और फिर इसकी बेस पर हम ये सारी चीजें करते हैं. नीचे वाले इस पॉइंट को यहाँ से कैसे लिंक करेंगे? वैसे कि इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ फास्ट लेवल ऑफ रियलिटी. देर इज infinitely complex presence behind the way we think about our humanly constructed world. We have interconnectedness of the social and cultural across the world, the global flows and movements of economies, political systems, people, media, and the internet. ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल इसके दी थी. There are many things which are relating to each other and connecting us with the other society. अब आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें. There is a world in which there is no internet. फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए. अब आप सोचो कि क्या हो रहा होगा. मोबाइल फोन्स नहीं है. लाइक वी आर मूविंग बैक टू दी दैट एज वेयर दीज थिंग्स डिड नॉट एग्जिस्ट. लेकिन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे फिर भी. क्यों? क्योंकि ह्यूमन की नीड है. दे कैन नॉट स्टे अलोन. ह्यूमन बीइंग को क्रिएट ही इस तरह नहीं किया गया कि वो अकेला रह ले. वो नहीं रह सकता. वन पर्सन नीड्स द हेल्प ऑफ अदर पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स. ये फैक्ट है ना, रियलिटी है. तभी तो ये चीज है ना कि पेरेंट्स के बच्चे हैं, बच्चे जितने भी हैं, सिबलिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं. सिबलिंग्स भी एक दूसरे के बगैर अगर नहीं होते, लेट्स फॉर एग्जांपल कुछ लोग के बहन भाई ज्यादा नहीं होते, एक ही बहन हुई, कई दफा है ही नहीं. पर्सन हैज गॉट ओनली वन चाइल्ड. और वो जो एक अकेला बच्चा होगा, वो जाहिर सी बात है, ही नीड्स टू बी to have a company of somebody else so that he can relate his thoughts with someone, can share his point of view, his perspective. और अपने एज ग्रुप में वो ज्यादा कंफर्टेबल मूव करेगा. क्यों? क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक्स मैच करती हैं. कई दफा पेरेंट्स बड़े क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, निटेड होते हैं. जैसे आई एम रियली blessed that my parents had been just like friends to me, like sharing thoughts. We used to have a you know always a collective sitting in our meeting rooms kaise कि we have got a that this common room of ours, and then we have got in our house a library. We used to sit, everybody loves to read books, तो सब निकाल के अपनी अपनी जिसने जो बुक पढ़ी होती है वो शेयर कर रहे होते हैं थॉट्स. अच्छा, this book, what could you get out of it? Like my mom is very particular about that. We all are reading books all the most of the time. She asks us, अच्छा वो बुक थी जो तुम लोगों ने ली थी, उसमें क्या था? And we go for not now also, we all have installed Kindle also on our apps as an app, either or on the same that program tab we have. But still we prefer holding a book in hand. ये कोविड के बाद से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ. अदरवाइज we used to shop every once in a month. Bookshop is a done thing and we have to carry books या लाइब्रेरीज का विजिट. ये नॉर्म्स बन गए ना एक फैमिली के घर में. उससे क्या हुआ? इंटरकनेक्टेडनेस आई फैमिली के अंदर. इसी फैमिली को आप ब्रॉडर करते जाओ. फैमिली बाहर जाएगी तो क्या बनेगा? सोसाइटी में जाएगी, मूव करेगी. 2-3 फैमिलीज, 3-4 फैमिलीज, 5-6 फैमिलीज, फिर एक छोटा सा टाउन बना. टाउन के बाद वो एक सिटी का कोई एक स्पेसिफिक एरिया बना, फिर सिटी बन गई. सिटी के बाद वो कंट्रीज में कन्वर्ट हुआ. फिर ग्लोबल एक्सपेंशन आप देखते जाएं. बेसिकली क्या हो रहा है? इंटरकनेक्टेड. सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. दिस इज हाउ वी स्पीक अबाउट दी सोसाइटीज एंड सोशल कल्चर. अब आ गया सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटीज.
सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड नेशन। ये देखा है आपको, अभी मैंने आपको एग्जैक्टली ये बात बताई है, ये वाली, गेटिंग इट? ये तीनों चीजें कम्युनिटीज में आए, सोसाइटीज में आए, इंस्टीट्यूशंस में आए, और फिर वो एक नेशन बन गई। अब जब ये सब हो गया तो देन व्हाट हैपेंड? इट स्टेट्स दैट हैव एन एग्जिस्टेंस independently of us and that have definite structures and symbolic meanings over and above us. अब सिस्टमैटिक मीनिंग्स कहाँ पे हैं? ओवर एंड अबव अस, हमसे ओवर एंड अबव। जहाँ पे भी हम बात करेंगे, जहाँ पे भी रिलेट करेंगे, तो सिंबॉलिक इम्पैक्ट उसका हमें मिलता चला जाएगा। एक और चीज आ गई, वो आ गई इंटरैक्शनल। वो क्या चीज है? एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इन द इमीडिएट या फेस टू फेस प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ऑफ अदर्स, ये एक दूसरे के साथ है। सेल्फ, then intersubjectivity and encounters with family, friends, groups and strangers in specific places. कहाँ कहाँ पर? ऑफिसेज हैं आपके, इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इवन अ बस, if you have ever traveled in a bus. I took one as an experience because one of our supervisor, he used to be there, so he said to us, he gave us, when this is when I was doing my behaviors from Oxford, so at that time it happened. Then lately in Harvard also the same kind of case studies had been given to us, that travel in a bus and come back with your thoughts. So I could see so many different cultures, so many things happening in one bus travel only. And the life is totally different. You hold your head and then you have to have a cup of coffee after that and sit in a corner, and then you have to think a lot about it. Oh my God, what I had been through. कितनी डिफरेंट सोसाइटी थी, कितना डिफरेंट ये इंटरेक्शन था जिसके थ्रू आई हैड बीन। अच्छा, देन कम्स इंडिविजुअल्स, द इनर वर्ल्ड, द साइकी वर्ल्ड, द साइकिक world of human subjectivity and the inner biological workings of genetics, hormones, structures and the like. अब देखें कितना इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पे आके वो बात आपको जो मैंने शुरू में आज कही थी लेक्चर के, दैट इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। individuality because of the thinking power the brain a person has. अब इसको एक्सप्लोर कैसे किया साइंटिस्ट ने कि एक इंसान की एक कंप्लीट इनर वर्ल्ड है और वो साइकिक वर्ल्ड है। अभी आपकी और मेरी एक साइकिक वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये अच्छे से पता है कि लाइक व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। अब फ्रॉइड का एक कंसेप्ट है, पता है ना आपको, आपने पढ़ा होगा उसको। उसमें एक कंसेप्ट जो वो उसको इवॉल्व करता है तो बिल्कुल एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है ना हमारे पास। हमारा थिंकिंग स्पैन डिफर करता है हमारे एक्सपीरियंसेस से। फिर कहीं कहीं चीजें एक्सपीरियंस से रिलेट करती हैं, को रिलेट करती हैं, और कहीं पे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो जाती हैं। अब कहते हो ये क्या है? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में क्या है? अभी मी एंड यू आर कनेक्टेड, बट बोथ ऑफ अस आर कनेक्टेड, लेकिन समहाउ वी आर ऑक्यूपाइड ऑलरेडी। ऐसा ही है ना? अभी आपका थॉट प्रोसेस मेरे साथ तो नहीं है कंप्लीटली, आप कहेंगी भी तो भी मैं एग्री नहीं कर सकती और आप भी एग्री नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी आर मेंटली इंटरेक्टिंग विद अदर थॉट्स। कहीं ना कहीं ब्रेन में थोड़ी देर के लिए फोकस हमारा हटता है और हम कहते हैं अच्छा क्लास के बाद मेरे पास क्या क्या है, ओके फाइन, ये भी है, ये भी है, ठीक है, कम बैक, अभी तो ये कंसेंट्रेशन है। ऐसा हो रहा है ना? प्लान आ रहे होते हैं, ऐसा होता है ना? ये थ्रू आउट चलता है हमारे साथ। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर वर्ल्ड। अच्छा, फिर बड़ा अच्छा एक इनर वर्ल्ड का है, मैं आपको अपना ब्लॉग शेयर करूंगी बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ दिस इनर वर्ल्ड, जिसमें सोल्स कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। कई दफा आपको पता है लाइक अपनी एग्जांपल ले लें, मी एंड यू आर ऑडियो कनेक्ट्स टू ईच अदर, है ना? हमने एक दूसरे को नहीं देखा अभी तक, यू हैवंट सीन मी एंड आई हैवंट सीन यू। चलो बड़ी बात है, वी कैन इवन एक्सचेंज पिक्चर्स, एक बात कर रही हूँ, नॉट डूइंग इट, बट यस ऑब्वियसली वो तो खैर एक अलग सी चीज है कि नॉट डूइंग एंड ऑल, बट व्हाट आई एम सेइंग जस्ट एन एग्जांपल कि नहीं देखा हमने, बट बिकॉज ऑफ आवर वॉइस कनेक्ट, बिकॉज ऑफ द सोल कनेक्टिविटी वी बोथ हैव गॉट, हम एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे, हो भी गए हैं। ऐसे ही है ना, ट्रस्ट लेवल बन गया है, यू ट्रस्ट मी, आई एम ट्रस्टिंग यू, आई एम स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, यू आर स्पीकिंग ऑन माई बिहाफ। अब इंटरकनेक्ट और इनर वर्ल्ड को जस्टिफिकेशन के लिए कहाँ पे उठाएंगे? तो हमारे पास एक बड़ी स्ट्रांग पावर है और उस स्ट्रांग पावर का नाम एक ही सुप्रीम पावर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, who can see you and me not only individually as our physical being
हमारी इनर वर्ल्ड, और इनर वर्ल्ड कुरान पाक से रिलेट हुई तो क्या बन गई? वही वाली बात, इन्नमल अमानुल बिन्नियात, इंसान की नियतों के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके एक्शंस। दिस इज व्हाट द साइकिक वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, योर इनर वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, वट एवर वी आर डूइंग हैज अ थॉट प्रोसेस। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी चलें कोई दूर जाने की बात ही नहीं, मैं तो हमेशा खुद एग्जाम्पल पे बिलीव करती हूँ। मेरा आपका पहला इंटरेक्शन वेरी नेचुरल, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी। हमें ट्रस्ट लेवल को गेन करने के लिए एक दूसरे को ट्रस्ट लेवल देना पड़ा था ना, हमने बात की थी, तो ट्रस्ट लेवल गेन हो गया था, क्लैरिटीज आ गई थी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। आप हमेशा एक चीज को देखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत से आपके रिलेशंस बनेंगे, बहुत से लोगों को आप मिलोगे। आप जैसे बीइंग अ कोर एचआर पर्सन, आपको लोगों को इंटरव्यूज के बाद इंडक्ट करना होगा। मैं पर्सनल रिलेशंस की बात नहीं कर रही, उसमें तो बहुत ही काम आती है ये चीज। बट अदर देन दैट, ऑफिशियल प्रोफेशनल की बात अगर आप देखो, अब कैसे पता चले? सामने तो वो वेल ड्रेस्ड बैठा है आपके, ही इज कैरिंग अ वेरी स्ट्रांग प्रोफाइल। एक महीने के बाद उसने क्या करना है? इज ही गोइंग टू परफॉर्म और नॉट? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? अब आप उसको कैसे करेंगे? लॉजिक से रिलेट, आप टेस्ट लेंगे, यू आर गोइंग टू गिव चैलेंजेस टू दैट पर्सन, विल क्वेश्चन देम। अब जो आपकी क्वेश्चनिंग टेक्निक है ना, वो जितनी इन डेप्थ होगी, उतनी ज्यादा आपको उस बंदे के बारे में पता चलता चला जाएगा। और ये वो एग्जाम्पल है, आजकल जो रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, वो मैं आपको क्लियरली ओपनली बता रही हूँ, कॉलेजेस लेवल पे या स्कूल लेवल पे भी बनने शुरू हो गए। उसमें बच्चे क्या कर रहे होते हैं? विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ पर्सनैलिटी, हम अपनी परसेप्शन को अगले से रिलेट कर रहे होते हैं, उसकी किसके थ्रू? द मीडियम ऑफ टॉक। थोड़ी सी लिमिटेड टॉक के साथ हम कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और लड़कियों के साथ तो है, क्योंकि हमारे वी थिंक फ्रॉम हार्ट मोर देन द ब्रेन। ये नहीं है कि हमारा ब्रेन लेस होता है, हम लोग सिर्फ एक चीज हमारे अंदर पता है क्या है, हम बहुत ज्यादा केयरिंग और सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम उसकी मिस्टेक सामने वाले की ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं, और हम उसको ज्यादा लिवरेज एंड ज्यादा मौके देते हैं, क्योंकि फाइन कोई बात नहीं, ये हुआ होगा यार, ये हो गया होगा, ये हमारे आंसर्स होते हैं टू सेव द अदर पर्सन। क्यों? बिकॉज हमारा दिल ये नहीं मान रहा होता कि मैंने जिसको इतनी रिस्पेक्ट दी है, वो मुझे बिट्रेल कर सकता है, या मेरे से उसने झूठ बोला है। और ये हर रिलेशनशिप के लिए है, दिस इज नॉट ओनली द पर्सनल रिलेशंस, ये किसी भी या ऑफिशियल रिलेशनशिप में और भी ज्यादा। आपने बॉस को इतना ट्रस्ट करके अपना सारा वर्क उसको दिया, कल आपको पता चला कि जो बोर्ड मीटिंग हुई उसने अपने नाम से सब कुछ पोस्ट कर दिया, और आपने कहा है, और आपका कोई एक या और मैंने उसमें मेट बनाया था, था। उसने आके आपको बोला, यार वो मुझे तो तुमने बताया था, तुमने बनाया, तुम्हारा तो नाम भी नहीं आया, ये क्या बात हुई, तुम ऐसे ही कह रही थी। ये व्हाट? कहेंगे हाँ हाँ ऐसा हुआ है, नहीं नहीं तुम ऐसे ही, फिर दो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, इस तरह हुआ है यार, तुमने तो ये हुआ, तुम तो कह रही थी मेरे बॉस मुझे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, आई हैव डन। और ये रियलिटी है, और ये वो रियलिटी है जो आप और मैं फेस करते हैं। वी आर शाइनिंग पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्रेनी पीपल, हम बहुत अच्छा काम बहुत जल्दी करके दे देते हैं, और लोग उसमें हमें क्या सिखाते हैं? इतनी जल्दी ना किया करो, गो स्लो। हाँ, हैव यू हर्ड अबाउट इट? मुझे लगता है आपने ये जुमले या जरूर सुने होंगे, बिकॉज एज फार एज माई बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग इज यू आर वेरी शार्प गर्ल, माशाल्लाह, काम जल्दी करती होगी आप। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है, एम आई राइट? ऐसा है, अगर जैसे इसमें इंटरेस्ट आ जाता तो वो मैं फौरन उसी वक्त, मतलब ऐसा है कि मैंने जो काम शुरू किया फिर मैं उसको खत्म करके ही रहती हूँ। एग्जैक्टली, उठती नहीं होंगी, छोड़ती भी नहीं होंगी, नहीं आज बेशक हाफ एन आवर ज्यादा सिटिंग हो जाए, करके ही उठना है, दैट्स ट्रू। ऐसे ही है ना? देख लो, मैंने दैट्स अब ट्रू। आपको कितना सही फिगर आउट किया। और फिर उसके अलावा आप जरूर, मुझे नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल मुझे सही बताना, माई ऑब्जर्वेशन इज राइट और रॉन्ग। आप में ना एम्पथी होगी आपकी नेचर में, आप सेंसिटिव भी होगे, आप हर्ट बहुत जल्दी हो जाती होंगी, और या आप ना बहुत दिल से करती होगी जो भी करती होगी, चाहे फैमिली है चाहे रिलेशन है, और आप ट्रस्ट भी बहुत दैट्स जल्दी ट्रू। करती होगी। ये भी होगा आपके साथ, आप देखो, है ना? या दैट्स 100% ट्रू। 100% ट्रू। देख लो वो क्यों मैंने ऐसे बोला, बिकॉज हमारी पर्सनालिटीज मैच करती हैं। ये मैं आपको बताऊं, आई एम एग्जैक्टली द सेम पर्सन, एंड आई सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है, मैं हर्ट हो जाती हूँ। और मुझे सब कहते हैं हम्म। प्रोफेशनलिज्म है, तुम घर का अपना ब्रेन, घर ऑफिस ऑफिस छोड़ के आया करो, घर पे ये चीजें नहीं। बट आई कांट रेजिस्ट, यू नो, आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट ह्यूमन हैपेंड नेचर। यस्टरडे। और इसमें नेचर में डिफरेंस है बच्चे, आई टेल यू। उन लोगों का जो थोड़े से कोल्ड हार्टेड है, और ये अच्छा नहीं होता कोल्ड हार्टेड होना, ऑनेस्टली, बिकॉज अल्लाह का निजाम नहीं है कोल्ड हार्टेड होना। अगर ऐसा होता तो हमारे नबी सेंसिटिव ना होते। बिल्कुल बहुत ही बेशक। हमें तो उनसे ही मिलता है ना। अब आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बड़ी बताऊं, मतलब इसकी बहुत रिलेट करती है, बिकॉज हम बड़ी ह्यूमन को रहे हैं, तो उसको समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है ना।
जो हम खुद हैं एक्चुअली। हमने खुद को समझ लिया तो सोशियोलॉजी कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप हर चीज को अपने से रिलेट करो एंड यू विल गेट द आंसर्स। आप एग्जाम में लिखने बैठोगे तो जो आपको केस स्टडी आए खुद पे रिलेट कर लो थोड़ी देर के लिए, एंड यू विल गेट एवरी क्वेश्चन आंसर्ड इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, एंड दिस वी विल डू। अच्छा, अब एक आपको मैं एग्जांपल इसकी बताने लगी थी। समटाइम्स क्या होता है कि हम एक थॉट प्रोसेस में जाते हैं कोई भी चीज। हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि बहुत अच्छा दिल से कर रहे होते हैं, अब हमारी जो कि नेचुरल बात है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ना वही डेवलप होने लगती हैं कि हमने देखो इतना अच्छा किया है। आप फ्रंट, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट भी देता है, स्माइल भी कर रहा होता है और आपको एक्नॉलेज कर रहा होता है। अब क्या पता कि कई दफा वो सामने वाला कैजुअल हो इन एनी, चलो इसकी एग्जांपल एक डायरेक्टली ले लें, कोई एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच, ठीक है, मैच्योर है, समझदार है, सब कुछ है। एक पर्सन ट्रूली सिंसियर उसकी हर बात को बाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर अच्छी है, उसका दिल, मैं इसके लिए बोलती होती हूँ वो वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, कि फरिश्ते का दिल है उसका। दिस इज ट्रू, और फॉर लड़कियों के लिए ये फैक्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं ये नहीं कहती कि आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई एम स्पीकिंग मोर, आई स्पीक रियलिटी विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। दिस इज लाइक दैट, मेन आर मेड अ बिट ऑन द हार्शर साइड, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है शायद, वो थोड़े से हार्श होते हैं, सारे नहीं होते। लाइक माई डैड, maybe your dad also, my dad is very, I still say yes because he is with me all, चले उस पर बात नहीं करेंगे किसी और वक्त। तो खैर, कमिंग टू दैट पॉइंट इज दैट यू नो दिस हैपेंस बट इट्स अ रेयर केस, वो फैमिली टू फैमिली डिफर करता है। तो क्या होता है कि अब दो 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 लोग हैं, एक ने इंटरेक्ट किया दूसरे को, उसने कहा कि अच्छा आई रियली लाइक योर वर्क, इट्स ऑसम, बात यहाँ से शुरू होती है। तो आपने सामने वाले ने, किसी ने, दो दो लोग हैं, उन्होंने ए ने बी को कहा कि अच्छा आई रियली लाइक योर वर्क, तो बहुत अच्छा काम करती हो, ऑसम यार, ये कैसे है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब जो बी है, ऑब्वियसली इट इज वेरी नेचुरल दैट द सेकंड पर्सन इज गोइंग टू बाय द होल थॉट, एक्सेप्टेंस। क्यों एक्सेप्टेंस? क्योंकि रियलिटी है, फैक्ट है ना, कोई झूठ थोड़ी है। आप वाकई काम अच्छा करते हो, एक ने नहीं कहा, आपको 10 लोगों ने कहा दैट यू आर अ रियल गुड पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग। अब क्या होता है कि थोड़े कुछ अर्से के बाद देन यू नो सिमिलैरिटीज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ के एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्क। अब क्या होता है कि चैलेंज आ जाता है ऑफिस का कोई भी जिसमें वर्क आता है। अब आप फुल फ्लेज अपने आप को अपफ्रंट करके कहते हो कोई बात नहीं, ये काम मैं करती हूँ सर, आप मुझे दे दें, आई विल डू दैट। अब आप अपना फुल फ्लेज काम करके उसको 101% थ्रो करते हो, देन यू टेक एक्स्ट्रा टाइम आउट, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से रिसर्च, कहाँ कहाँ से सारा मैटर इकट्ठा। अब जब वो पूरा का पूरा मैटर बन जाता है एंड यू प्रेजेंट इट टू योर बॉस, अब वो इंटेंशनली उस वक्त रूड बिहेव करता है, ठीक है कि नहीं? रूड बिहेवियर करता है, ये क्या है, अच्छा ये किया इतनी देर में, सेंड इट टू मी, मैं खुद ही कर लूंगा। अब सेंड इट टू मी तो हो गया, उसके बाद मैं खुद ही करूंगा, और थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है कि वो तो ऐसे ही प्रेजेंट था board meeting में। So there, you know, becomes the difference in which we speak of the inner world of that person, the psychic world of that human being is completely deteriorated. डिस्ट्रॉय नहीं, डिटोरिएटेड। उधर इतने बम फटते हैं कि वो ये सोचने लगता है इंसान के, व्हाट आई शुड डू एंड व्हाट आई शुड नॉट डू, मैंने तो सब गलत किए, आइंदा मैं ये नहीं करूंगा। एंड दैट पर्सनालिटी बिकम्स अ रिवेंजिव पर्सनालिटी। अब ये वो वाली पर्सनालिटी है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था ना एक दफा। अब जो रिवेंजिव पर्सनालिटी है ना अपने इनर वर्ल्ड में, वो क्या करेगी, वो रिवेंजिव पर्सनालिटी रिवेंज लेना शुरू करेगी एक कैटेगरी की, एक टाइप में। और जो उसकी दूसरी टाइप है वो अंदर अंदर अपने ही अपने थॉट प्रोसेस में जाएगी और वो एक थिंकिंग स्पैन में ही घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जमीर, द इनर वर्ल्ड, is going to object against whatever the person is thinking or trying to do। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है नहीं, उसके उसमें फरिश्ते का दिल था, उसमें शैतान नहीं आ सकता था। Got it? अब जब उसके अंदर वो चीजें इन्फ्लुएंस करके उसको चेंज कर रही हैं तो लड़ाई इंटरनली शुरू हो गई ना। अब उसको रिलेट करें आप किसके साथ, साइंस के साथ, हॉर्मोन्स। अब क्या है, जेनेटिक्स वर्क नहीं करेंगी क्योंकि उसकी फैमिली टू फैमिली ये चीजें उसमें आई नहीं। भाई मेरे फादर ने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, उन्होंने डिसऑनेस्टी की नहीं जिंदगी में, उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन पे रह के मुझे कभी रेफर नहीं किया किसी को कि इसको नौकरी दे दो क्योंकि ये एक जीएम लेवल के बंदे की बेटी है। नो, वट एवर आई डिड ऑन माई वर्क, ऑन माई ओन। मैं अपने बच्चों में ये जेनेटिक्स को कैरी करते हुए वो सब कुछ भी नहीं करूँगी। गॉट इट? और जहां तक मेरी फैमिली रन करता है, लाइक फैमिली वेयर आई बिलोंग टू, वो मेरे जेनेटिक्स में आएगा। अब जब अब जब लड़ाई होगी ना तो मेरे इनर वर्ल्ड की बाहर की वर्ल्ड के साथ होगी, क्योंकि लोग ये कर रहे होंगे,
मेरा थॉट प्रोसेस, ब्रेन अलाइव है, एक्टिव है, वो मेरी इनर वर्ल्ड को कहेगा देखो ना बाहर क्या हो रहा है, वो सक्सेसफुल है, तुम्हें क्या मिल रहा है, और मैं फिर हर्ट होती रहूंगी, मैं अपने आप में सोचती, ये वो स्ट्रेंथ ऑफ मेच्योरिटी लगती है। अब आप देखिए हार्मोन्स कैसे इफेक्ट होते हैं, इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, यू स्वेट, आपके हाथ ठंडे होते हैं, आपको गर्मी लगती है, इवन यू हैव गॉट अदर मेनी रिएक्शंस। और अब मैं ना भी बोलूं तो आपको बहुत सारे इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे। शिवरिंग हो जाएगी एकदम से शुरू, यू विल स्टैमर एट टाइम्स, यू विल फील यू नो इन अ वे, एट टाइम्स हार्ट थ्रॉबिंग होगी, पेल्पिटेशन शुरू हो जाएगी। अब क्या हो रहा है आपके साथ इंटरनली, आपकी इनर वर्ल्ड में हॉर्मोन्स भी तो हैं, हार्मोन्स को भी तो इफेक्ट होगा। आप स्ट्रेस्ड हो गए, एंजाइटी डेवलप होगी, एंजाइटी से क्या है, बीपी राइज होगा, ब्लड प्रेशर क्या है बेसिकली, बीपी इज ऑन दी हायर साइड ऑफ दी ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली, जो कि हार्ट को ज्यादा जब पंप करेगा तो क्या होगा, उसके बाद वो ब्रेन सेल्स में डैमेज करेगा, नर्व्स पेल्पिटेशन में जाएंगी, और अल्टीमेटली आपको पता है कि एंड क्या है उसका। अब जब जिसको बीपी हुआ तो अगली बीमारी उसको डायबिटीज भी होनी है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। This is how your inner world gets affected by the subjectivity of that surrounding, that culture, that society, that sociology we are talking. Now it must be very clear to you. आया ना, मजा आ रहा है, समझ आया clear? जी। हाँ? कितना रियल लाइफ के साथ होते जा रहे हैं हम इस चीज के साथ इसमें। अब देखें नेक्स्ट बात आती है, नाउ इट इज सेड इसको दैट, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं ना तो और ज्यादा वो समझ आते हैं इन डेप्थ इसका। है ना, वो अच्छा लगता है ना, मैं अच्छे से आपको जो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो यू गेट टू नो दैट एग्जैक्टली। और ये रियलिटीज है ना बच्चे, एग्जैक्टली। ये हम लोग सिर्फ वही बात है ना, हम अपने आप को कितना स्टडी करते हैं इन डेप्थ, ये सारी चीजें हमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में ही तो मिलती हैं। और साइकोलॉजी अगर बेसिक, रियलिटी से इसको अगर कंपेयर करते हैं तो और ज्यादा समझ आता है कि हाँ ये रियल लाइफ में ऐसा हाँ हो रहा है, और ये अब समझ आता है कि क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, यस दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। भाई अब आप कुछ सोचे ना, अब जिसके आपने ट्रस्ट कर लिया बगैर बिना जाने, बगैर बताए हुए, भाई उसका तो जेनेटिक्स में ही ये काम था ना, वो तो सारी उसकी जनरेशन ही, उसकी जनरेशन में किसी से सिंपथी या एम्पथी करना था ही नहीं, वो तो आपकी हैबिट को कैरी कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो कैरियर बनेगा आगे जाके आपकी हैबिट का, क्योंकि आपने उसको इम्प्रेस किया है। तो बेसिकली तो वो वैसा नहीं है ना, उसका ब्लड तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा ना। वो अलग बात है कि वो इतना ज्यादा आपको आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाए कि वो कहे नहीं, जो इस बंदे की पर्सनालिटी है, ये जो सही इंसान है, इसी की चीजें मैंने फॉलो करनी है, ये उस बंदे की हैबिट्स कन्वर्ट हो जाएंगी, वो जेनेटिक्स से फाइट करेगा। और ये यहाँ पर आके अल्लाह ताला की दी हुई विल, जो उसने इंसान को दी है सोचने समझने की सलाहियत, उसका इम्पैक्ट आता है। गॉट माई पॉइंट? जो कहते हैं ना कि जी सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी है इंसान को, राइट रॉन्ग की, हेयर दैट वर्क्स। एक बुरा इंसान अच्छे में कैसे बना, ऐसे बना, एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम कैसे हुआ, ऐसे कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने रियलिटीज की लाइफ को, जो इररिलेवेंसीज ऑफ लाइफ थी, उनसे कंपेयर किया। उसने कहा ये मुझे क्यों बंदा अच्छा लगता है, इसकी पर्सनालिटी तो मैं चेक करूं, मैं क्यों इससे इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें थी जो शायद उसमें नहीं थी। अट्रैक्शन तो यही है ना, ये मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कई दफा पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो एक साथ हो जाते हैं। वो क्यों एक साथ हो जाते हैं? वो इसलिए एक साथ होते हैं क्योंकि उनकी इनर वर्ल्ड्स मैच करती हैं जल्दी से, वो एक दूसरे को कोरिलेट करके एडजस्ट कर लेते हैं, साथ चिपक जाते हैं, कहते हैं हाँ बस हम सही है, वी नॉट नीड नॉट टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मोर, हाँ वी आर हैप्पी द वे वी आर। दिस इज हाउ द फैमिलीज वर्क, दिस इज हाउ द हैबिट्स। एक ही फैमिली में कितनी दफा ऐसा होगा कि इवन पेरेंट्स डिफरेंट नेचर के होते हैं, बच्चे डिफरेंट नेचर के होते हैं, ऐसा होता है वहां पर। इसलिए ऐसा होता है कि जो बेटा या बेटी कोई भी है, वो उनमें, लेट सपोज एक फैमिली है उसमें फादर इज वेरी हार्श, मतलब वो सच को बिलीव नहीं करता, वो ऑनेस्टी को बिलीव नहीं करता। ऐसा नहीं होता, मैं एक एग्जांपल क्रिएट दे रही हूँ आपको, वो ऑनेस्टी को बिलीव नहीं करता। चलो एक एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसे खुदा ना खास्ता घर की जिसमें फादर जो है वो चोर चोर है, तो ये भी तो फैमिली होगी ना, तो फादर थीफ। अब जो रॉबर्स हैं उनकी नहीं फैमिली क्या? वो अलग बात है कि हम फिर सिक्वेंशियल जाएं आगे बढ़ें कि वो थीफ बना क्यों या क्या हुआ, वो एक अलग सीन है। बट एक्चुअली फैमिलीज तो वो एग्जिस्ट कर रही है ना इस दुनिया में। चोर की भी तो फैमिली है ना, उसके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, सब है। अब उसकी फैमिली में आप आओ, अब उसका 1 साल का बच्चा जो दुनिया में आ जाता है, जब उसका सेंस वर्क करना शुरू करता है, उससे पहले भी, इवन जब वो उसकी बर्थ तक, उसकी वाइफ के साथ उसके हस्बैंड का ट्रीटमेंट क्या था, वो आके घर में जोर से शाउट करता था, चोरी की बातें उसे बताता था, मैंने आज ये कर दिया, मैंने, बीवी बेचारी खामोश। क्योंकि
उस वाइफ को ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि ये सब चीजें गलत हैं, ये ना हो। और वो माँ है, उसके दिल में ये था कि मेरे बच्चे में मेरे मेरे हस्बैंड की ये ना आए बातें, चाहे वो चीजें कितनी ना भी जाए। चोर डाकू की, वो माँ है ना, उसको अल्लाह ने डाला ही ऐसा है उसकी नेचर। वो कहेगी नहीं, मेरा बच्चा ऐसा ना हो। और फिर वो उसकी मिन्नतें कर रही होगी, तुम ये छोड़ दो ना, हम कम पैसों में गुजारा कर लेंगे। मूवीज आपने देखी है, मैं उस आपको, और मूवीज कहीं कहीं बड़ी रियलिटी पे बेस होती है स्टोरी, आगे से उसमें वल्गैरिटी एंड ऑल दैट डर्टी स्टफ इज समथिंग एल्स ना। और हम उसको रिलेट अपने ड्रीम से करते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम दिखाते हैं, और हम बाद में कहते हैं जी वो मूवी है, वो जो भी है, दैट्स नथिंग टू डू। मैं तो स्टोरी की बात कर रही हूँ, विच हाँ। अट्रैक्ट्स मी। तो अब क्या है कि वो ये मिन्नतें करेगी, अब ये सारी बातें बच्चा तो सुनता रहा है, बिकॉज व्हेन ही इज बॉर्न ही इज 1 ईयर ऑफ एज। अब वो दुनिया में आएगा, चलना फिरना जब सीखेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अब उसमें डिसीजन नजर आएगा। जो बातें उसने अनकॉन्शियस में अपने सुनता हुआ आया था ना, सबकॉन्शियस में जो डली हुई थी उसकी, वो अब रियलिटी से मैच करेगा। इनर वर्ल्ड कहाँ मैच हो रही है? रियलिटी से। बाहर क्या हो रियलिटी रहा है? से। फादर क्या कर रहा है? अच्छा, गन है उसके पास। ये आज क्या थैले लेके आता है? रात को क्यों आता है? फिर ये डरता क्यों है? इस टाइम पे बाहर क्यों नहीं जाता? सारा दिन क्यों सोता रहता है? मुझसे बात आंखें मिला के क्यों नहीं करता? मुझे बाहर लेके बाकी पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं जाता? मेरी मदर क्यों मेरे साथ बातें छुपाती? अब उसको रियलिटीज नजर आनी शुरू हो। जब उसकी एज 5 ईयर्स प्लस पहुंचेगी तो उसे समझ आ चुकी होगी ये गलत है। 10 ईयर्स आएगा तो बोलने लगेगा, माँ को हाँ। फेवर देगा। 15 में एंटर होगा तो रिबेलियस हो जाएगा। किसके अगेंस्ट? बताएं भला। आइदर मदर और आइदर फादर। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्या कहती हैं आप? आवाज आपकी कट रही है, कैन यू रिपीट इट अगेन? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अब जब वो 15 ईयर्स की एज में पहुंचा, टीन्स आ गए ना, टीन्स में समझ आ हाँ। गई उसको। अब 15 में पहुंच के वो बच्चा मदर की फेवर में हो जाएगा या मदर के अगेंस्ट हो जाएगा? फादर की फेवर में होगा या फादर के अगेंस्ट होगा? ऐसा क्यों होगा? आई गेस फादर के अगेंस्ट में होगा। बिल्कुल। और कैसे? क्योंकि क्योंकि जो वो माहौल अपने घर में देखता हुआ आ रहा है कि ना तो वो मदर्स को सपोर्ट कर रही है, ना कोई और फैमिली में अगर कोई होगा ना वो सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली चीजें उसको समझ आ रही होंगी कि ये चीज सही नहीं है, हम्म। ना उनके लिए, अपने उसके लिए, घर के लिए, ना ही दूसरों के लिए। एग्जैक्टली exactly. और इस स्टेटस पर वो क्या करना शुरू करेगा कि वो एक डिसीजन ले लेगा। ये थॉट कहाँ से आई? ये थॉट आई इनर वर्ल्ड से। गॉट इट? हम्म। ये इनर वर्ल्ड ने उसको एक्सपीरियंस करवा दिया, रियलिटी से मैच करके, ह्यूमन सब्जेक्टिविटी एंड द इनर बायोलॉजिकल वर्किंग्स ऑफ जेनेटिक्स। फाइट कहाँ हुई? जेनेटिक्स। अब देखे ना, ये तो रियलिटी आप एक्सेप्ट करे बगैर रह नहीं सकते। जेनेटिक्स तो फादर की भी है उसके अंदर। ये बिल्कुल। तो नहीं है ना कि फादर की हैबिट्स नहीं है। अब जो हाँ। रिबिलियन होना है वो फादर की हैबिट है, लेकिन अच्छे के लिए रिबिलियन हो, रिबिलियस होना है, या बुरे के लिए रिबिलियस होना है, ये डिसीजन उसको कौन देगी? उसकी इनर वर्ल्ड और साइकिक वर्ल्ड, इनर जहां वो ये वर्ल्ड। डिसाइड करेगा कि अच्छा या बुरा। अगर वो रिबिलियस हो रहा है और नेगेटिव है तो क्या बनेगा? रॉबर। यस, ही है ना? हाँ, अगर तो वो अपने मॉम को सपोर्ट करता है, ये करेगा कि ये चीज गलत है जो उसके फादर करें, तो फिर वो एक अच्छा इंसान बनेगा। एब्सोल्युटली। और एक्चुअली तो रिबिलियन रिबिलियस है ना, उसके भी तो अगेंस्ट खड़ा हुआ या। है। और अगर वो उसके फेवर में चला गया तो माँ के अगेंस्ट खड़ा हो गया। माँ गलत कहती है, बाप सही है, वही वही रास्ता ठीक है। इसकी बेस पर हो सकता है उसका दूसरा सिबलिंग कुछ और डिसीजन ले ले, तो बाप की फेवर में हो जाए। उसको शायद ये समझ आए कि ये गलत कर रहा है, हमें फादर को देखना है। यू नो, थिंग्स डिफर। लेकिन इनर वर्ल्ड का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और उसमें फिर वर्किंग्स जेनेटिक्स की आएंगी। फिर हार्मोन्स कैसे उसको, अब हार्मोन्स क्या इम्पैक्ट लेके आए? दैट ऑब्वियसली ब्रेन के न्यूरॉन्स ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, और पॉजिटिविटी जनरेट हुई। पॉजिटिविटी जनरेट किसकी हुई? मदर की साइड से। मैंने कहा नहीं यार माँ बिल्कुल ठीक, देखो ना रियलिटी में मैं बात कर रहा हूँ। अब दोनों बड़े हो गए, दो बहन भाई थे, उसके बाद एक और भाई उसका आ गया। उसने उसको ऑब्जेक्ट किया थोड़े दिनों के बाद, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? यू डोंट नो यू आर अगेंस्ट योर फादर, इट्स रॉन्ग। अब जस्टिफिकेशन नहीं थी उसके पास कुछ भी, एकदम से कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, बट डू यू नो व्हाई? यू हैवंट सीन द वे माय मदर, आवर मदर हैज सफर्ड, आई हैड टू बी। अब उसने अपनी बेसिक्स के ऊपर लॉजिक्स खड़े करके, एविडेंसेस क्रिएट करके, रियलिटी से इंटरकनेक्ट किया, उसकी इनर वर्ल्ड को जेनेटिक्स के असर से निकाला, एक तरह का अक्षर में। और इट, सो दिस इज हाउ द साइंटिफिक। अब इसकी वजह से क्या होता है? समहाउ, क्योंकि इनर वर्ल्ड में फाइट तो हो रही है ना, देखो आप, यू कांट से कि नहीं हो रही, ये तो फैक्ट है ना, यू कांट डिनाई इट।
उसकी वजह से पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों को कोई ना कोई मेडिकल रीजंस हो, मेडिकल इश्यूज हो जाएं, हेल्थ इश्यूज आ जाएं, और वो आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि इनर फाइट है ना कंटिन्यूसली। ये पॉसिबल नहीं है कि उन्हें इन हेल्थ इश्यूज ना हो। आइदर कैन बी डायबिटिक और आइदर कैन बी ब्लड प्रेशर पेशेंट। और ये आपको मैं जरूर कहूंगी कि आप बेशक मुझे शेयर ना करना, आप कहीं भी अपनी कोई भी अपने फ्रेंड्स में, फैमिली, इमीडिएट नहीं, अपनी रिलेटिव्स में इस तरह की कोई फैमिली ऑब्जर्व करें जिसमें आपने देखा हो कि फादर और मदर, नाउजुबिल्ला, इस तरह नहीं मैं कह रही कि कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा, नेचर्स डिफर, इसमें फादर बड़े मतलब गुस्सा करने वाले की हो होता नॉर्मल। है ऑब्वियसली, अगर फैमिली में तो आप सुन रहे हो तो कि बाहर किसी फैमिली में के फादर की साइड से मसला है, मदर की साइड से मसला है, तो वो हाँ, हो जाता है चिल्ड्रंस में। वही। और बच्चे जो होते हैं फिर वो डिसीजन लेने में पीछे हटते हैं या बहुत अटैच नहीं होते, हम्म। कितने तो देखे हैं हमने। अब जैसे मैं आपको दूर जाने की बात ही नहीं, माई वन ऑफ माई अंकल, ही इज अ बैंकर, सो द अदर वन इज ऑल्सो अ बैंकर, बट दोनों की फैमिलीज में डिफरेंस ये है कि द सन ऑफ वन हैज टेकन बैंकिंग एज ए प्रोफेशन, और वो अब जाके क्वालिटी ऑडिटर लग के तो ही इज डूइंग द टॉप नॉच पर्सन ऑफ वन ऑफ दैट बैंक नाउ। बट द अदर वन ही सेड नहीं, इसमें सूद है, मैंने नहीं जाना बैंकिंग में। So he denied, and he's doing his specialization in medicine, और वो अब जाके अभी recently he went to US and he is doing his specialize। क्यों? क्योंकि actually thought process यहाँ से फर्क हुआ, दोनों में genetics में चीजें आई ना, likes and dislikes की, लेकिन decision वो लिया जो कि लॉजिक से ज्यादा करीब था, क्योंकि उसकी मदर बहुत रिलीजियस है, दूसरी जो है वो नॉर्मल है, इतना बहुत ज्यादा नहीं होता, बट यस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये डिफरेंसेस आगे जाके चीजें लेके आते। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें, अभी मैं इसको 1 मिनट पहले पॉज करूं, फिर आप ये वाला पैराग्राफ जरा रीड करें।